Hello, welcome to our channel. So today we will be talking about Guillain Barre syndrome. To define Guillain Barre syndrome, it is a relatively rare, acute, inflammatory, immune-mediated disease which is affecting the peripheral nerves or the peripheral nervous system. So it is an acute, all of a sudden, after an infection, it is leading to Guillain Barre syndrome. And it is immune mediated. Why? Our own immune system is affecting our own peripheral nerves or the nerve cells. And it is a polyradiculoneuropathy. Multiple nerve roots are affected. Etiology. So, what all are the causes behind the occurrence of Guillain-Barre syndrome? In etiology, as I said earlier, it is not occurring chronically. It is occurring all of a sudden after an infection with cytomegalovirus or any Campylobacter jejuni after a gastrointestinal diseases or any mycobacterium pneumonia or any Zika virus, COVID disease. So after any bacterial infection or any viral infection, it can lead to गुलियन बार सिंड्रोम एंड वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है यूजुअली जो कोविड वैक्सीन हो गया हेर्पिस वैक्सीन हो गया हीमोफिलस और हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया इस वैक्सीन के वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होके हमारा ही पेरिफेरल नर्व रोड्स को अटैक कर देंगे और गुलियन बैर सिंड्रोम जैसा ऑटो इम्यून डिसीज होने का चांसेस होता है अनदर कॉज इज द सर्जरी जो सर्जरी है एनी ट्रॉमा है वो भी जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके वो हमारा ही नॉर्मल जो प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे or that will also leads to Guillain-Barre syndrome. So these are the etiology: any bacterial infection, any viral infection, and any vaccination, and after any surgery or trauma. Pathophysiology. We discussed about pathophysiology now. Like due to any bacterial infection or any viral infection or any vaccination, our immune system is stimulated. So that will, this infection will trigger the immune response in the T cells, B cells. That will produce the antibodies. These antibodies will mimic. The antibodies doesn't know which is the healthy protein and which is the unhealthy protein. They will destroy both the proteins or the protein molecules that is present inside the pathogen and also the gangliosides that is present on the nerve cells, the peripheral nerve cells. So they look similar. All these proteins look similar. So a cross-reactive antibody targets the axonal components. So they don't know which is normal or which is healthy. They destroy both the healthy and the pathogenic, and it will destroy the myelin sheet of the peripheral nervous system. So when the myelin sheet is affected, the neurons destruction is happening. So the normal transport of the signals or the communication or the nutrients, everything is affected. So the signals from the brain to the peripheral nervous system is not done properly, it's not provided properly because of this destruction of the myelin sheath due to this immune attack of our own body towards the peripheral nerves. So that is the pathophysiology for the Guillain-Barre syndrome. Symptoms, the first initial symptom will be the patient might be having weakness, especially an ascending weakness will be there. The weakness will not start from the upper motor neuron or upper part of the body. It will start from the lower part of the body. It will start from the limbs, one limb affected, the other limb is affected, then it towards the upper limbs, then their facial palsy, then the respiratory effects will occur. So the patient initially will have numbness. उनको तो numbness होएंगे, झंझनाहट होएंगे, tingling होएंगे. They experience a tingling sensation. उनको जो muscle का weakness में दिक्कत है, उनको muscle weakness feel होएंगे और उनका paralysis, उनको जो चलने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, उनका balance में दिक्कत होएंगे, coordination नहीं है, उनको facial weakness होएंगे, properly उनको facial expression नहीं हो पा रहा है,
नहीं कर पा रहा है, और उनका फिर जाते जाते उनका ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होएंगे, उनका swallowing में जब swallowing प्रॉब्लम होएंगे, ऑब्वियसली दैट विल लीड टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्पिरेशन, ये सब रिजल्ट होएंगे। सो ये है जो गुलियन बार सिंड्रोम में सिम्टम्स हमें देखने के लिए ये सब मिलेगा। देन द नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस, हमें डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे। तो द डायग्नोसिस में जो है, नॉर्मली फॉर एनी डिसीजेस हमें जो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव से, और फिजिकल एग्जामिनेशन, सिंस इट इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, हम तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें रिफ्लेक्सेस है, जो पावर लिम्स का पावर है, उनके रिफ्लेक्सेस है, उनको क्या था, कुछ पैरालिसिस हो रहे क्या, और उनका मतलब वॉकिंग कैसे है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सब चीजें हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इंफॉर्मेशन मिलेंगे, है ना। डेफिनेटली वी विल गेट इंफॉर्मेशन। सो दे हैव अ प्रोग्रेसिव वीकनेस, हमें जो जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनको तो एक प्रोग्रेसिव वीकनेस होगा, दैट विल बी अफेक्टिंग वन और मोर लिम्फ, एंड वो तो माइल्ड पैरास्थीशिया, अदरवाइज माइल्ड पैरासिस से वो वीकनेस बढ़ के फिर फैटल फ्लैसिड पैरालिसिस में चले जाएंगे। फिर एरिफ्लेक्सिया, मतलब रिफ्लेक्स नहीं मिलेंगे, यू नो, ब्लंट, म्यूट और सीरो, वो डीप टेंडन रिफ्लेक्स वगैरह सिरो होंगे, और पावर में दिक्कत होएंगी। तो ये सब चीजें भी हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पता चलेंगे। एंड एक मोनोफेसिकोस, मोनोफेसिकोस मीन्स ये इन्फेक्शन, मतलब जो ऑनसेट होता है वो शुरू होके विद इन 4 मंथ, 4 वीक्स, नॉट मंथ, 4 वीक्स में ये पीक में आएंगे सिम्टम्स ना। सिम्टम्स पीक में आके फिर एक प्लेटू फेज, एक रिकवरी फेज होंगे। So we can confirm that हाँ this is GBS. But in some other cases ये तो weakness हो रहा है, but it is extending to more than 4 weeks. So then we have to rule out whether it is actually a Guillain Barre syndrome or any other case. So monophasic होस ये Guillain Barre syndrome का एक speciality है। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स इंक्लूड CSF एनालिसिस, हमें LP करना है, स्पाइनल टैप से हमें CSF सैंपल भेजेंगे, और CSF में जो एल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, एक वो फिनोमेना है वेयर जो हमारा प्रोटीन लेवल, जो पेशेंट विद GBS उसमें उसका प्रोटीन लेवल बढ़ते दिखाएंगे, मतलब दे विल बी इंक्रीज प्रोटीन लेवल एंड ए नॉर्मल सेल्स काउंट, जो protein is increased but within cells, within normal limits of cells का cell count। तो ये डिसोसिएशन हमने GBS में देखने के लिए मिलेगा, वो एक स्पेशलिटी है। फिर अदर नर्व कंडक्शन स्टडीज है, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज न्यूरोलॉजी में हम करते हैं, EMG स्टडीज, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन स्टडी, वो हमारा जो इलेक्ट्रिकल, हमारा मसल नर्व्स का और मसल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए है। जो GBS में पेशेंट का ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि ड्यू टू द रीजन ऑफ द डिस्ट्रॉयड माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ये होता है। फिर बाकी तो जो नॉर्मल इमेजिंग्स है, ये सब चीजें ना, इमेजिंग से भी कुछ मतलब चेंज है सेल्स का, ये सब भी पता चलेंगे। तो ये है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एंड नाउ फाइनली हाउ वी कैन मैनेज। सो हमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो प्लाज्मा एक्सचेंज है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, सपोर्टिव केयर एंड फिजिकल थेरापी। प्लाज्मा से पहले हम इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन ट्राई करेंगे। इधर जो डोनर से बहुत ज्यादा, मतलब पूल ऑफ प्लाज्मा से विथ हेल्दी एंटीबॉडीज इज मेड दिस इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, वो हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे with a dose of 0.4 gram per kg body weight for a 5 day consecutive with no break, 5 days को के लिए हम देंगे, वो है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। एंड प्लाज्मा एक्सचेंज, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लाज्मा हम सेपरेट करके, क्लीन करके, क्लीनिंग प्रोसेस थ्रू मशीन सेंट्रीफ्यूज करके, फिल्ट्रेट करके, जो भी टॉक्सिन्स एंटीबॉडी से रिमूव करने के बाद जब हम ये हेल्थी वाला ब्लड प्लस जो हमने रिमूव किया है प्लाज्मा, उसके लिए हम रिप्लेस करेंगे सलाइन और एल्बुमिन यूज करके, हम पेशेंट के बॉडी में रिप्लेस कर देंगे, वो है प्लाज्मा एक्सचेंज। फिर फिजिकल थेरापी एंड सपोर्टिव थेरापी। सपोर्टिव थेरापी हमें मॉनिटर करना है उनका रेस्पिरेटरी स्टेटस, इन्हीं वेंटिलेटर सपोर्ट नीडेड है तो इंट्यूबेट करके पेशेंट को वेंटिलेट करना है, पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हाइड्रेशन देना है, स्टेरॉइड मैनेजमेंट, DVT प्रोफाइलैक्सिस करना है, क्योंकि पेशेंट को पैरालिसिस और
लाइक वीकनेस है तो फिर चांसेस है डीबीटी फॉर्म के लिए। एंड फिजिकल थेरापी लॉन्गर रन में हमें रिहैबिलिटेशन को इम्पोर्टेंस देना है। उनका ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, फिजिकल थेरापी में उनका जो है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होता है, मोबिलिटी करना है, रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज होता है। एंड ये सब चीज़ में हमें प्रायोरिटी देंगे। और उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो उनका कितना भी हमें इंडिपेंडेंट अटेन करने के लिए हेल्प करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट में मेनली हम सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट करेंगे। एक प्योर क्योर इज नॉट दैट पॉसिबल इन द केस ऑफ गुलियन बैर सिंड्रोम. So hope you all got a little bit idea regarding the Guillain-Barre syndrome. So today we discussed about what is Guillain-Barre disease and what are the cause behind it, how the pathophysiology for the developing or development of the GBS, and what are the symptoms shown in patient, how we can manage. If you like the video, please subscribe. Let us see soon in another video. Thank you so much. Thank you.